गुड आफ्टरनून। मैं आप सभी को हार्दिक मुबारक देना चाहता हूं। I just would like to take 5 minutes to explain the context of the topic on which Vikrant Bhuria ji is going to address the press conference. Last 12 years of the BJP government's rule, we have been witnessing devastating reality of the government literally waging war against the people in general, particularly the tribals, in pursuit of so-called development. When the BJP government looks at Niyamagiri Hills, dense forests of Asdev, Arand, and lands of Bastar, Sijimali, and Raigad, they only see iron ore, coal, bauxite mines, but they fail to recognize the tribals, the tribal communities, their rights over Jal Jangal Jameen, their traditional practices, their religious practices. The BJP government doesn't look at them, doesn't recognize them. The BJP government ignores the rights of the tribals living in those areas. When the tribals protest peacefully, the BJP government uses the police force, administration to silence them. This is something that we are seeing across every part of the country where acquisition of lands are happening for mining activities. BJP government has consistently chosen their corporate friends over constitutional rights of the tribals. I just would like to mention the repeated violations of various legislations that have endowed rights to the tribals, repeated violations of provisions of the Constitution in the pursuit of BJP to please their corporate friends and to hand over the mines to them. If you look at Forest Rights Act, the Section 3 of the Act has given very clearly rights to the tribals to manage the community forest resources. The Grama Sabhas are endowed with the rights to manage these community forest resources, and the claims for community forest resources have to be settled by the governments. But much before their claims are settled, land acquisition is happening and they are being displaced without any resettlement and rehabilitation. Section 4, subsection 5 of Forest Rights Act clearly states that premature eviction of the tribals without settling their rights and Forest Rights Act should not happen. But yet, in every state, the BJP is evicting the tribals without settling their rights under Forest Rights Act. Section 5 of the Forest Rights Act gives rights, powers to the tribals to manage the forest, to make sure that the forest is sustained, and also to see that no activities happen that would destroy the forest. But in the name of mining operations, forests are destroyed, and the tribals' oppositions, tribals' protests are totally ignored. UPA government have brought an act
Land Acquisition Resettlement Act 2013, which has stated very clearly that in the scheduled areas, lands of the tribals shall not be acquired without taking their consent. But we find no such process is followed. We have also seen how the provisions of Land Acquisition Resettlement Rehabilitation Act, as far as resettlement rights, rehabilitation rights, are totally ignored. Nowhere a very clear, well-defined package for resettlement, rehabilitation of the tribals is offered to them. And the Grama Sabhas are empowered to articulate their objections, but the way the Grama Sabhas are conducted is a farce. They are all fake Grama Sabhas that are conducted. Section 4 to 9 of the Land Acquisition Resettlement Rehabilitation Act clearly defines a very important process called social impact assessment. The governments have to explain what is the impact of the project, how it is going to impact the livelihoods of the tribals, how it is going to impact the environment through a very consultative social impact assessment. But we find no such social impact assessments, public hearings are happening. Similarly, the Panchayat Sections and Scheduled Areas Act endows the Grama Sabha with all the powers to manage Jal Jangal Jameen, to also protect, safeguard the customary rights, religious practices of the tribals. All these rights are totally ignored while acquiring the lands for the mines. And coming to the violation of the constitutional provisions, the Article 244, which provides Schedule 5 in the tribal areas, gives rights to the tribals to protect their lands, protect their rights, protect their religious practices. All these constitutional provisions are ignored. And also Article 21, right to life, right to dignity, is also totally ignored while dealing with the tribals in acquisition of the land. So we need to, at this point of time, examine whether the BJP government cares for the rights of the tribals or gives importance to favor its corporate friends. It is in this context Dr. Vikrant Bhuria is going to come before you how the Grama Sabhas are totally kind of fake Grama Sabhas happen, how fake concerns are being taken in a particular land acquisition project, which we will explain in detail, which amplifies whatever I have placed before you. Thank you very much. नमस्कार साथियों, जय जोहार। आज एक बहुत बड़ा एक्सपोजे करने हम आपके सामने आए हैं। जैसा कि राजू सर ने कहा कि हमारे देश में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जब तक बीजेपी सरकार है तब तक हर तरह का फ्रॉड, हर तरह की चोरी मुमकिन है। और इसी सीरीज में जिस तरह से आपने वोट चोरी का नाम सुना होगा, आपने सीट चोरी का नाम सुना होगा, आपने पेपर चोरी का नाम सुना होगा, आपने चंदा चोरी का नाम सुना होगा, अब एक और चीज सुन लीजिए, अंगूठा चोरी। ये अंगूठा चोरी क्या है? ये लोगों की आइडेंटिटी छीनने का काम है। जिस तरह से एसआईआर में बहुत बड़ा चढ़ाकर बातें करी गई कि एसआईआर में हम लोगों को जोड़ रहे हैं, पर आपने ये भी देखा कि एसआईआर में जिंदा लोगों के भी नाम काटे गए क्योंकि उनको चुनाव जीतना था। वैसे ही अंगूठा चोरी में उन्होंने मरे हुए लोगों को जिंदा करा और उनके अंगूठे लिए। यह है सिंगरौली फाइल्स। सिंगरौली में हमारे साथियों ने इन्वेस्टिगेशन करा और उसमें जो निकल कर आया बहुत चौंकाने वाला था। जो धिरोली कोल ब्लॉक है, जो स्टार्टर टेक
मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड का है, जो कि अडानी की कंपनी है। उसमें जो तथ्य सामने आए उससे पूरा सिस्टम हिल जाता है, क्योंकि फर्जी ग्राम सभाएं हो रही हैं, ये हम सबको मालूम है। पर तथ्य क्या है, वो तथ्य आज आप सबके सामने मैं लेकर आया हूं। और सिर्फ ये एक कॉर्पोरेट हाउस की बात नहीं है, पूरे देश में इस तरह की फर्जी ग्राम सभाएं हो रही हैं और बिना अनुमति के फर्जी अंगूठे के साथ में उनकी अनुमति लेकर धड़ल्ले से माइनिंग चल रही है। ग्राम सभाओं की अनुमति नहीं लेना यह फॉरेस्ट राइट एक्ट और पैसा कानून का उल्लंघन है। यह धज्जियां उड़ाई जा रही है संविधान की। तो फिर ग्राम सभाओं में अंगूठे किसने लगाए? क्या मरे हुए लोगों को लाया गया और उनका अंगूठा लिया गया? क्या फर्जी ग्राम सभाएं ली गई? मैं आपके सामने जो डॉक्यूमेंट्स रखने जा रहा हूं, ये आरटीआई से मिले हुए डॉक्यूमेंट्स हैं। ये कोई भी मनगढ़ंत कहानी नहीं है, आरटीआई से डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। और जो डेथ सर्टिफिकेट आपके सामने भी मैं रख रहा हूं, जो कि ये सत्यापित करते हैं कि किस तरह से मरे हुए लोगों की अंगूठे लाए गए और उनसे अनुमति लेकर ग्राम सभाओं के प्रस्तावित किए गए। मैं चाहूंगा हमारे साथियों को कि जरा जो प्रेजेंटेशन है वो एक बार आप सबके सामने रखें। ये अंगूठा चोरी आज के नए भारत का एक आईना है कि किस तरह से फर्जी हस्ताक्षर, फर्जी रजिस्टर और फर्जी ग्राम सभाओं से फॉरेस्ट राइट एक्ट का और पैसा कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। सबसे पहला नाम मैं लेना चाहूंगा बृजभान सिंह जी का। यहां पर आप देखोगे कि दो दस्तावेज आपके सामने हैं। एक तरफ उनका डेथ सर्टिफिकेट है, दूसरी तरफ ग्राम सभा में जो अनुमति ली गई है उसमें अंगूठा है। बृजभान सिंह जी 2014 में चल बसे और इसका डेथ सर्टिफिकेट आपके सामने है। पर जो उनसे सहमति ग्राम सभा में ली गई, चाहे वो एजेंडा दिनांक 20 नवंबर 2021 हो या फिर बैठक में हस्ताक्षर 2021 में 24 नवंबर को है, तो इसका मतलब 7 वर्ष बाद, उनके मरने के 7 वर्ष बाद उनका एजेंडा दिनांक 2021 में उनके हस्ताक्षर नहीं लेते हुए उनके अंगूठा लिया गया। दूसरा उदाहरण फुलेश्वरी सिंह, इनकी मृत्यु 2018 में हो गई और जो बैठक में हस्ताक्षर लिए गए वो 2021 में, जो अंगूठा लिया गया 2021 में लिया गया। तीसरा जगबंदन सिंह गौंड, इनकी मृत्यु 2015 में हो गई, पर जो इनका अंगूठा लिया गया ग्राम सभा में 2021 में लिया गया। चौथा उदाहरण चंद सिंह, इनकी मृत्यु 2017 में हो गई, पर जो इनका अंगूठा लिया गया 2021 में ग्राम सभा में लिया गया। पांचवा उदाहरण नंदलाल सिंह खैरवार, इनकी मृत्यु 2014 में हो गई, पर जो इनका अंगूठा लिया गया ग्राम सभा में 2021 में लिया गया। छठा उदाहरण सुखवारिया सिंह खैरवार, इनकी मृत्यु 2017 में हो गई, पर इनका अंगूठा जो लिया गया ग्राम सभा की अनुमति में और खदान की अनुमति में और फॉरेस्ट के डाइवर्जन में वो 2021 में लिया गया। तो ये प्रमाणित सत्यापित कॉपियां मैं आप सबको उपलब्ध करवा दूंगा, जो कि ये स्थापित करती है कि आज पूरे देश में फर्जी ग्राम सभाओं के माध्यम से जो लोग मर गए हैं उनके भी अंगूठे लिए जा रहे हैं, उनकी भी अनुमति ली जा रही है और जिंदा लोगों को मारने का काम एसआईआर में करते हैं, पर अंगूठा चोरी में ये मरे लोगों को जिंदा कर कर उनकी अनुमति लेकर आदिवासियों की जमीन छीनने का काम ये भाजपा की सरकार कर रही है। और आखिरी में एक और मैं उदाहरण आपको दिखाता हूं। यह उदाहरण है सुमारू सिंह और सोनमती सिंह का। कौन थे सोनमती और सुमारू? ये वो लोग थे जो सिंगरौली में धिरोली कोल ब्लॉक का विरोध पूरी ताकत से कर रहे हैं और ये डेलीगेशन लेकर दिल्ली आए थे राहुल गांधी जी से मिलने। उनके सामने पूरी बात भी रखी, जो आप भी थी वो भी बताई। पर इसमें मजेदार चीज क्या है? मजेदार चीज यह है कि इनका अंगूठा भी उस ग्राम सभा के प्रस्ताव में मौजूद है। अब आप बोलेंगे कि ये तो जिंदा है, तो अंगूठा आ गया तो कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात इसलिए है क्योंकि ये दोनों पढ़े लिखे लोग हैं,
ये दोनों हस्ताक्षर करते हैं, अंगूठा नहीं लगाते। तो क्या बीजेपी सरकार पढ़े लिखे आदिवासियों को अंगूठा टेक बनाना चाहती है और इसी तरह से ये अपना विकास मॉडल आगे कर रही है? देखिए, इतिहास में एकलव्य का अंगूठा काटने का काम द्रोणाचार्य जी ने करा था और जो उनका अधिकार था वो लिया गया था। आज के भारत में मोदी सरकार और बड़े बड़े उद्योगपति आदिवासियों का अंगूठा काटकर उनसे अनुमति ले रहे हैं और उनकी जमीन छीनने का काम ये लोग कर रहे हैं। हमारी जो मांगे हैं वो एकदम स्पष्ट हैं। हम मांग करते हैं कि इसमें सीबीआई की जांच होना चाहिए। जहां भी इस तरह के केसेस सामने आए पूरे देश में उन केसेस की सीबीआई जांच होना चाहिए, क्योंकि ये फ्रॉड करने का केस है, संविधान के उल्लंघन का केस है। और आदिवासियों के जो राइट्स की बात के राजू सर ने कही थी कि लगातार कांग्रेस ने सेफगार्ड्स करे, उनके लिए अधिकार करें, उनके लिए नियम बनाएं, उनको धज्जिया उड़ाने का काम ये बीजेपी की सरकार कर रही है। और जो लोग धोखाधड़ी में अधिकारी शामिल हैं, जो कॉर्पोरेट कंपनियां शामिल हैं, उनके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए। और तीसरा कि जब तक ये जो हमने सत्यापित आरोप लगाए हैं, जब तक इसकी तफ्तीश ना हो जाए, तब तक जहां जहां खदानें, जहां पर इस तरह के आरोप लगे उस पर रोक लगना चाहिए और माइनिंग पर रोक लगना चाहिए। एसआईआर में जो हमने बात कही कि एसआईआर में जिस तरह से जिंदा लोगों के नाम काटे गए, उनका वोट का अधिकार छीना गया, उस पर भी वापस से जांच होना चाहिए। और जो लोगों के जो नाम कटे हैं और जो वोट का अधिकार छीना गया है, उस पर भी एक जांच बैठना चाहिए। उड़ीसा को लेकर जो सर ने एक बात कही है कि पूरे देश में फॉरेस्ट राइट एक्ट, पैसा कानून, ये सबसे बड़े अधिकार हैं आदिवासियों के। और आज के देश में फॉरेस्ट राइट एक्ट का तो उल्लंघन हो रहा है, पर पैसा कानून की धज्जियां किस तरह से उड़ रही है वो मैं आपको बताऊंगा। आदिवासियों के संरक्षण में, पूरे देश में आदिवासियों का संरक्षण कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, जो कि द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उड़ीसा से आती हैं। पूरे देश में 10 ऐसे राज्य हैं जो कि शेड्यूल एरियाज में आते हैं, शेड्यूल्ड स्टेट्स हैं। 5th शेड्यूल वहां पर लागू है, 5वीं अनुसूची वहां पर लागू है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे देश में ओडिशा ही अकेला ऐसा राज्य है जहां पर से मुख्यमंत्री भी आदिवासी है, भाजपा के हैं, और जहां से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आती हैं। और पूरे देश में 10 में से 9 राज्यों में पैसा कानून लागू हो चुका है, जो कि 1996 में कांग्रेस की सरकार लेकर आई थी, भूरिया कमेटी के निर्देशों पर लेकर आई थी। पर ओडिशा ही अकेला ऐसा राज्य बचा है पूरे देश में जहां पर जो अनुसूचित क्षेत्र आने के बाद भी, शेड्यूल एरिया होने के बाद भी वहां पर पैसा कानून लागू नहीं हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी जिन लोगों को भी आदिवासियों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है वो सिर्फ डमी है, और असली में जिन लोगों को इसका अधिकार है इनका संरक्षण करने के लिए, चाहे राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, वो इसका संरक्षण नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद। कोई सवाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। थैंक यू। जैसे फुलवरिया देवी का नाम गिनाया कि 2018 में मृत्यु हुई और उनका अंगूठा 2021 में लिया गया, तो किसी और व्यक्ति का अंगूठा लिया गया उनका, वो तो हमने वो लिस्ट भी पूरी देख ली है, उसमें डुप्लीकेशंस नहीं है। जो 1-2 डुप्लीकेशंस की बात हमने वो भी करा है, उसमें एक में एजेंडा में अलग चीज है और जो हस्ताक्षर, क्योंकि एजेंडा दिनांक जैसे 2 में उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे बृजभान सिंह जी का, तो एजेंडा दिनांक है 20 नवंबर और जो बैठक में हस्ताक्षर हुए हैं वो 24 नवंबर 2021 में हुए हैं। तो ये पूरा देखने के बाद और उसमें डुप्लीकेशन चेक करने के बाद ही इन नामों को हम लोग आपके सामने लेकर आए हैं। तो और ये डॉक्यूमेंट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आप खुद भी तफ्तीश कर सकते हैं। विक्रांत जी, या चूंकि आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए पहले से ही विशेष अदालतें होती हैं, इन मामलों को क्या किसी एफआईआर के जरिए आगे बढ़ाया गया है, जिसे लेके आप लोग भी आने वाले समय में आगे बढ़ेंगे, या बस ये सीधे आपके पास आए हैं और आपका ये आरोप है? देखिए, इसको लेकर हम सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहे हैं और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, क्योंकि ये हमारे पास 4-5 दिन पहले जब आया
हमको इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि कुछ सिविल सोसाइटी के लोग काफी लंबे समय से इसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे पर उनको मंच नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि आपने देखा होगा ये जो दस्तावेज निकाल गए आरटीआई से निकाले गए हैं और आरटीआई में दस्तावेज निकलने में बहुत समय लग जाता है। तो ये आरटीआई से दस्तावेज निकाले गए हैं, इस पर इन्वेस्टिगेशन हुई है, उसके बाद डेथ सर्टिफिकेट सबके निकाले गए हैं, उनको फिजिकली वेरीफाई करा गया है, उसके बाद आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के लिए हम लोग आए हैं और इसको हम आगे सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएंगे। थैंक यू।